Okay. Yes, sir. Good evening, sir. Introduce yourself, Vicky Ranjan. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ranjan Kumar. I belong to Bihar and living in Patna. My father is in teaching profession and my mother is a nurse. I completed my schooling from Bihar School of Examination Board in 2013. I completed my bachelor degree of political science from Patna University and completed my bachelor degree of library science from Mansarovar Global University in 2021. I also have a 1 year diploma in computer application. My hobbies are collecting information from books, painting and traveling. My ideal person is Dr. APJ Abdul Kalam. As a person, I want to live a virtuous life with simplicity, honesty and hard work as my asset. My professional skill makes me suitable for this post and I am aware to the duties and responsibilities of a librarian and I am compatible with this post. Thank you, sir. Okay, what kind of professional skills are you talking about which can suits better for the job of librarian? सर मेरा प्रोफेशनल स्किल से ये तात्पर्य है कि एक लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिटीज स्कूल लाइब्रेरियन के लिए होनी चाहिए वो मेरे Okay. अंदर है। Can you जैसे tell बच्चों me one or two? Please mention. सर बच्चों में रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना और स्कूल्स के करिकुलम एक्टिविटीज़ में शिक्षक और छात्रों की मदद करना। राइट, ये तो बड़ी पढ़ाई चीज़ें हैं जो आपने बताई। रीडिंग हैबिट्स तो हमें डेवलप करनी होती हैं और जो टीचर्स और इनकी हेल्प करना ये लाइब्रेरियन का कर्तव्य है। बट यस सर। हाउ डू यू डू दैट? इसके लिए सर हम लाइब्रेरी रीडिंग हैबिट की है सर। आप दोनों के लिए बताइए। अच्छा, रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए सर हम बच्चों को लाइब्रेरी में आने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। उन्हें बुक्स रीडिंग के लिए आप के तरीकों को बता सकते हैं और एक कंपटीशन करवा सकते हैं जिससे बच्चे लाइब्रेरी में आके एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं और और टीचिंग टीचिंग करिकुलम में सपोर्ट करने से मेरा तात्पर्य ये है कि मैं यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तो उनके जगह पे मैं पढ़ा भी सकता हूँ सर। Okay, that is a miscellaneous thing. Okay, so apart from there is a one particular job to disseminate the information, each and every information to the students and teachers, and make them ready for the future. Right? It is यस सर। a job of the librarian. Actually, main duty of the librarian. So then, how यस do सर। you do that when you are teaching uh, in on behalf of a teacher, right? So यस this is actually not a duty of a librarian. When he is doing on behalf of then him, you cannot impart their subject's knowledge, right, in the students. Then यस what will you do? What is your strategy in the free periods you will do for the students? सर फ्री पीरियड में मैं बच्चों को बुक्स पढ़ने के बारे में बताऊंगा कि इसको पढ़ने से आप अपने रीडिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और पढ़ाई से जुड़े रहने से बच्चे जो है मोटिवेट भी रहते हैं और ब्रेन शांत रहता है, काम रहता है। तो बच्चे पढ़ाई पढ़ाई से जुड़े हुए रहते हैं। And nowadays it is seen that teachers are more prone to work only just their usual works, daily works, only routine works. They are doing their यस सर। routine works, right? And they are not enhancing their knowledge. Then what will you do as a librarian to enhance their knowledge, to make them up to date? सर मैं बच्चों को वर्तमान परिवेश में जो हमारे देश में जो हो रहा है उससे अवगत कराएंगे जिससे हो सकता है उन्हें कुछ मोटिवेशन मिले और जानने को मौका मिले और पढ़ के वो अपने आप को बेहतर फील करें। I'm asking about the teachers. क्या होता है कि ओके। टीचर्स जो है जो जो नॉलेज उनके पास है वही नॉलेज लेकर चलते रहते हैं, राइट? एंड दे यस डोंट सर। अपग्रेड देयर देमसेल्फ। देन व्हाट विल यू डू ऑन योर पार्ट टू अपग्रेड देयर नॉलेज, टू मेक देम अप टू डेट? सर इसके लिए जिस विषय के शिक्षक हैं उनसे अगर रिलेटेड कोई आर्टिकल या फिर कोई रिसर्च रिसेंट में कोई पब्लिश हुई है और मैं उसके बारे में पता करके उन्हें बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई फिजिक्स के टीचर है या फिर केमिस्ट्री के टीचर है तो उससे रिलेटेड कोई हमारे देश या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिसर्च हुआ है तो उनके बारे में बताऊँगा और बच्चों को कहूँगा कि सर को ये मोटिवेट करूँगा कि बच्चों को इनके बारे में बताएं क्योंकि ओके, बच्चे सो इससे what exactly यस you are talking about? There is a term in the library science for that service. Can you name it? सर रेफरेंस सर्विसेज। Yes, reference services. So how, what kind, what types are there?
reference services type, sir. Yes, how many types are there? Sir, exactly, I am not aware the type of reference services, but I little bit knowledge about reference service, how Uh-huh. it works in the library. Mm-hmm. रेफरेंस सर्विसेज अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करना हो तो हम दूसरे सोर्स को प्रीफर करते हैं, Mm-hmm. इसको रेफरेंस कहेंगे सर। What is the reference there in the दूसरे सोर्स, मतलब क्या जो आप कहना चाह रहे हो, कौन से दूसरे सोर्स जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या फिर? या फिर उस लाइब्रेरी में जो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो हम किसी दूसरे लाइब्रेरी से उसको हम बोरो कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो हम नेशनल लेवल पे या फिर लाइब्रेरी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी मदद से हम उसको अपने लाइब्रेरी में ला सकते हैं। तो क्या ये एसडीआई, आपने सुना है एसडीआई क्या होता है? एसडीआई सर सेलेक्टिव डिसिमिनेटर इंफॉर्मेशन होता है सर। बिल्कुल होता है। इसका मतलब सर मुझे ये समझ में आता है कि लाइब्रेरी में जो इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे करंट से रिलेटेड जो भी मुद्दा है उसमें भी अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर यूजर है लाइब्रेरी का जिनको कि स्पेशल सिर्फ उन्हीं को हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो ये एसडीआई का हम इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू, जिससे क्या है कि सभी यूजर्स को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में ना बताते हुए कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को मैं बताऊँ इस टाइप से इन्फॉर्मेशन। ये काइंड ऑफ रेफरेंस सर्विस है ना? हाँ, यस सर, यस सर। दैट्स व्हाट आई ये वाज ये टॉकिंग ये अबाउट अर्लियर। ये एक टाइप का सर अलर्ट अलर्ट सर्विस है, किसी यूजर्स को हम बिल्कुल। बताएं। एक्चुअली मैं इसी बारे में बात कर रहा था, जो सर्विस आप देने की बात कर रहे थे टीचर्स को पर्टिकुलर उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। यस सर, अलर्ट सर्विस। जी जी। तो एक सर्विस होती है कैश, तो क्या ये यस सर, बच्चों, हम बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को अवेयर करा सकते हैं ऐसी सर्विस? यस सर, बच्चों को उनके स्तर तक हमें बताना चाहिए। करंट अवेयरनेस सर्विसेज मतलब हमारे उनका जानकारी होने से बच्चों में एक अलग मोटिवेशन आएगा। हम्म। बच्चे और टीचर दोनों को एक रूप से इसको जानने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को कैसे आप देखते हैं इस जमाने में, लाइब्रेरी को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है टेक्नोलॉजी से और कैसे हेल्पफुल है? टेक्नोलॉजी सर हमारे न्यू जनरेशन्स की डिमांड है और लाइब्रेरी में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे बुक्स जो पहले प्रिंटेड फॉर्म में थे उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल करवा सकते हैं, और आने वाला समय वर्चुअल लाइब्रेरी का और हाइब्रिड लाइब्रेरी का है। और इसमें क्या है कि कोविड-19 के समय में हमें ये सीखने को मिला है कि कोई ज़रूरी नहीं है को हम फ्रिक्वेंटली विजिट कर पाएँ लाइब्रेरी। तो ऐसे समय में हम अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लगता है डिजिटल वर्ल्ड में, मान लीजिए आपने लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर दिया, राइट, एंड यस डू सर। यू थिंक कि देयर इज नो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? नहीं सर, ऐसा नहीं है। डिजिटलाइजेशन अपनी जगह सही है, लेकिन वर्तमान समय में जो इन्फॉर्मेशंस है अगर हम डिजिटल फॉर्म में इसको हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशंस और सोर्स की बॉम्बार्डिंग है। इससे क्या है कि यूजर्स मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है और नहीं है। और एक लाइब्रेरी हम जाते हैं तो अगर एक स्किल्ड लाइब्रेरियन हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड या फिर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स वन टाइम में प्रीफर कर सकता है या सजेस्ट कर सकता है, ये हमारे लाइब्रेरी की एक बेनिफिट है। बिल्कुल। तो किस तरीके से, मतलब वन टाइम टू टाइम, जैसे मान लो कुछ एक बढ़िया पक्का सा एग्जांपल मुझे दे के बताओ, मतलब कुछ अच्छा सा एग्जांपल। जैसे सर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम बुक्स हाँ। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त करना है, हम्म। जैसे अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हेनरी लॉ फाउंटेन को इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हम्म। मैंने इसको सर्च करने का कोशिश किया कि क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन। मैंने 1-2 घंटे मतलब नेट पे सर्च किया, लेकिन मुझे कुछ एग्जैक्ट टाइप का नॉलेज मुझे नहीं मिल पाया वहाँ से। ओके। लेकिन इसी जगह पर अगर कोई अगर लाइब्रेरियन होता तो हमें विदिन 5 मिनट्स हमें समझा देता कि डॉक्यूमेंटेशन क्षेत्र में क्यों मिला और उनकी क्या उपयोगिता है। मुझे अभी तक सर समझ नहीं आया कि उनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला या फिर क्या है हेनरी डॉक्यूमेंटेशन। लॉ फॉन्टेन किसी क्लासिफिकेशन स्कीम से भी जुड़े हुए थे? हाँ सर, हेनरी लॉ फाउंटेन यूडीसी से जुड़े हुए थे, यूनिवर्सल डिजिटल क्लासिफिकेशन ये से। कब पब्लिश हुई थी? 1905 में सर आई थी। यूडीसी का नोटेशन क्या है? यूडीसी का नोटेशन सर मिक्स नोटेशन है सर। ओके, सो व्हिच क्लासिफिकेशन डू यू थिंक इट्स परफेक्ट? सर मेरे हिसाब से डीडीसी परफेक्ट है सर, क्योंकि इसमें अपडेट अभी टाइम टू टाइम होते आए हैं और रिसेंट में भी अपडेट होकर के 23rd वर्जन अभी वर्क कर रही है सर। ओके, तो और आपको इसमें लगता है कि सीसी परफेक्ट नहीं है? नहीं सर, सीसी एक साइंटिफिक है लेकिन उसमें अपडेट टाइम टू टाइम नहीं हुआ है, और थोड़ा सीसी डीडीसी के मुकाबले सर मुझे लेंदी लगता है। इसको समझने के जल्दी लिए एक लगता है, एसकी। बट यू शुड नो दैट कि डीडीसी हैज 3-4 वॉल्यूम्स, राइट, एंड यस सर। सीसी हैज हाँ वन। हाँ, ये उपयोगिता है सर कि डीडीसी थोड़ा उसका वॉल्यूम्स बड़ा है और सीसी जो है एक क्लासिफाइड मैनर में एकदम एकदम स्मॉल
कॉन्साइज है, जिससे कि हम सभी कुछ निकाल सकते हैं उसमें। ओके, तो मान लो आप लाइब्रेरियन बन गए, तो कौन कौन सी पब्लिकेशंस की, कौन कौन सी पत्रिकाएं आप सब्सक्राइब करोगे अपनी लाइब्रेरी? सर हम पहले अपने यूजर्स की नीड को देखते हुए पत्रिका सब्सक्राइब करेंगे। जैसे अगर बच्चों के लिए है तो कॉमिक्स की किताबें या फिर साइंस से रिलेटेड बुक्स बच्चों के लिए हम करेंगे। अगर लाइब्रेरी के यूजर अगर उससे बड़े हैं तो उनके लिए हम फिक्शंस नॉन फिक्शन नॉवेल्स भी रखेंगे कि फ्री टाइम में वो पढ़ के अपना माइंड स्ट्रेस फ्री रखें। वेरी वेल। तो आप कौन कौन सी जगहों पे घूमने जा चुके हो? सर अभी रिसेंट में मैं बनारस विजिट किया हूँ सर, जो कि बनारस। हमारे शहर से लगभग 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ओके। बनारस में जाके क्या देखा आपने? बनारस में सर वहाँ मणिकर्णिका घाट है जहाँ दाह संस्कार होता है, और वहाँ पे गंगा आरती को मैंने देखा सर। तो मणिकर्णिका घाट ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगा? दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, ढेर सारे घाट है वहाँ पर। सर ऐसा है कि एक्चुअली वहाँ सभी घाट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ओके। और हाँ, लगभग एक घाट पे जाएं तो सभी घाटों का फील लिया जा सकता है वहाँ पे। सही बात है, बिल्कुल। तो पेंटिंग वगैरह पसंद भी है आपको शायद? पेंटिंग करते पेंटिंग हैं में या पेंटिंग ऐसे ही देखना पसंद है? नहीं सर, पेंटिंग मैं मिथिला पेंटिंग बनाता हूँ। मिथिला पेंटिंग, तो उसका यस इतिहास सर। क्या है मिथिला पेंटिंग का? सर मिथिला पेंटिंग एक्चुअली जिस समय राम और सीता जी का विवाह हो रहा था तो इनके फादर महाराजा जनक जी ने विवाह उत्सव के दौरान महिलाओं के सहयोग से पूरे शहर में एक पेंटिंग करवाई थी, हम्म। जो कालांतर में चल के एक मिथिला पेंटिंग के नाम से फेमस हो गया। हम्म। और ये पेंटिंग बहुत ही आसान है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, जैसे लाल हरा काला, जो भी नेचुरल होता है, पूरा नेचुरल चीज़ इसमें इस्तेमाल होता है, कोई आर्टिफिशियल नहीं। ओके, वेरी गुड। तो भैया, मान लीजिए कल को लाइब्रेरियन हो जाते हैं, ठीक है, और यस आपको सर। अंडमान निकोबार भेजा जाता है, तो फिर चले जाएंगे? आप अकेले सर भी? हमें कोई दिक्कत नहीं है अंडमान निकोबार जाने से। वैसे भी मैंने आफ्टर स्कूलिंग मैं अकेले ही रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अकेले रहने का। मैं अभी भी अकेले ही रह रहा हूँ सर। आपके पेरेंट्स के अकेले बेटे हो आप? नहीं सर, मेरे 2 भाई हैं सर। ओके, तो आपको जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं सर, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे दूसरे पार्ट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अभी वर्तमान में नॉर्थ इंडिया में मैं विजिट किया हूँ, और वो एकदम साउदर्न इंडिया, एक तरह से कह ले तो इंडिया का आइलैंड है वो। वहाँ तो एंड अलग तरीके के, अलग किस्म का खाना मिलता है तो। हाँ, वहाँ सी फूड मिलेंगे क्योंकि वहाँ खेती रिलेटिवली कम होती होगी। जी बिल्कुल। तो आई कैन अडेप्ट विद दिस सिचुएशन सर। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं? मैं नॉन वेज, मैं दोनों का मैं प्रीफर करता हूँ सर। ओके, बोथ। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं।